Okay. So today we'll be revising the chapter electrolysis. Okay, Ayush one, you can say that a given compound exists only in the form of molecules, whether it will be able to act as an electrolyte or not. It can act as an electrolyte. Ayush to समय electrolyte. Electrolyte means it should be able to conduct the electricity. All electrolytes are good conductors of electricity, true or false? Bad conductors of electricity can also be electrolytes. Example, hydrogen chloride is a bad conductor of electricity. Carbonic acid will not be able to conduct electricity. That is a weak electrolyte, you will say. But question is whether it can conduct electricity or not. All electrolytes will conduct electricity. They are good conductors. Here good conductors, poor conductors, but not bad conductors. They can be either good conductor or poor conductor, but not bad conductor. Electrolyte will always exist in the form of ions. सर हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा सर? जब सर वो एसिड बनेगा तब ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. We will get to it. Prince, we will discuss that again. So, ions versus molecules. So, electrolytes, they will exist as ions if they are poor or what you say, weak and strong electrolytes, right? Electrolytes can be of two types: strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes, they will show very high ionization, that is the number of ions will be very large as compared to the number of molecules. Weak electrolytes, ions and molecules will be similar. Example of strong electrolyte: वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन्स और मॉलिक्यूल्स जो है लगभग बराबर बराबर, या आयन्स आप ऐसा बोल सकते हो बहुत कम रहेंगे, क्योंकि आयन्स हैं इसीलिए कुछ कुछ कंडक्शन दिखा रहा है. अगर 100% केवल मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कंडक्टिविटी तो होगा कि नहीं होगा? If only molecules are present, will not be there. Example of strong electrolytes:
हाँ सर HF। पहले, हाँ पहले कुछ एसिड्स के एग्जांपल बता दीजिए। सर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाँ ये कौन एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ बताइए। सर हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ ये भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल बताइए स्ट्रॉन्ग बेसिस। Salts can also act as strong electrolytes. Example, जो the salts that are formed by the reaction of a strong acid and strong base, that kind of salts which are called as normal or neutral salts, they are the good examples. So bracket में neutral salts. The question which Prince is asking is how HCl act as an electrolyte. नहीं सर, क्वेश्चन ये नहीं था सर। क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन क्लोराइड से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा कि नहीं? 100% होगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रोलाइट है। सर हाइड्रोजन और आपको क्लोराइड पता, ओके आई एम गेटिंग वेयर यू आर गोइंग। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस सर। तो here whenever it will be ionizing, then only it can act as an acid, hydrochloric acid. Weak electrolytes will have very low ionization, that is less than 30%. Example of the weak, sorry, weak electrolytes में एसिड एग्जांपल बताइए। सर कार्बोनिक एसिड, सर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। Okay, all these organic acids. This is a inorganic acid, but this is also a weak acid. Weak base, ammonium hydroxide, ammonium carbonate, NH। कैसे लिखोगे कार्बोनेट? कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है? CO3 2 माइनस ना, तो ये हो जाएगा हाँ बेस। So this ammonium carbonate, it is basically salt, no? Is it a salt or it is a base? Ammonium carbonate, salt. Yes, it is the base. Ammonium hydroxide is the base. Ammonium carbonate is the salt. Tell any other weak, anything you are getting weak base का कुछ example. Calcium hydroxide, yes. पहचानने का, whenever there is going to be highly reactive metal, हाईली रिएक्टिव मेटल यानी ग्रुप 1 का जो मेटल है उसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम किस ग्रुप में आ रहा है? सेकेंड ग्रुप में आ रहा है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा वीक है। फर्स्ट ग्रुप वाला लिथियम हाइड्रोक्साइड, नहीं नहीं, वो स्ट्रांग है कि स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा? स्ट्रांग बनेगा, ग्रुप 1 में है। ठीक है, देखिए few examples like this: ammonium carbonate, lead acetate, oh, this is not H, COO, acetate ion. Okay, so next, I will ask individually. Samay, you tell me that this particular reaction you are seeing, Samay, what is this element? Only whom I asking will answer. It is no. Yes, stannum, stannous, stannic. Common name? Tin, SN tin. Here, what is going on? Whether oxidation or reduction? Gain of electron is reduction. How you remember that this is reduction? How do you explain it is reduction? Gain of electron है. Whenever there is a gain of the negative charge, negative, 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 reduce, reduce, reduce. प्रियतोष बोलो. You want to wash your feet? You can wash your feet, no problem. Okay, Priyatosh, see this equation. In this one, which element is undergoing oxidation? Copper is converting from which oxidation state to which oxidation state? Here copper is in which oxidation state? What is the valency of copper in copper oxide? And in copper valency? क्या नहीं है? क्या इसका देना चाहिए वैलेंसी? जीरो. जब भी एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा उसका जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो रहता है. कोई भी एलिमेंट जब अपने एलिमेंटल स्टेट में है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, इसका मतलब उसका वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कुछ कंबाइन किया तो नहीं, तो उसका वैलेंसी जीरो है. और अभी उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो है. सो हियर कॉपर हियर इज ए जीरो, हियर 2+. क्या हुआ 2+ से
जीरो में आया ये, तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? क्यों? 2+ ज्यादा है कि जीरो ज्यादा है? यानी रिड्यूस हुआ ना, कम हुआ ना। जब कम हुआ उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस, रिडक्शन हुआ। तो कॉपर क्या हाइड्रोजन लिया? कॉपर तो हाइड्रोजन लिया नहीं। तो आइदर देयर इज ए गेन और लॉस ऑफ, तो इसी इक्वेशन को आप लोग ब्रेक करके भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे आसान चीज ये है, आप इसमें देखोगे कि इसका वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जब पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ेगा, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, देखिए वाई, electrons have what charge? And if you keep on taking negative, 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 you become, which is called, मार खाएगा, कंट्रोल। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, कंट्रोल। रिडक्शन, बी सीरियस, रिडक्शन, electrons have the negative charge and if you keep on accumulating negative, जैसे कोई इंसान अगर हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव, तो उसका भी कैरेक्टर कम हो जाएगा। और जो पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहता है, पॉजिटिव हमेशा सोचता है, वो ग्रो करेगा। ओके, सो वन इज यू ग्रो, you get oxidized, and one is you take negative negative and you get reduce in life, reduction। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जो ज्यादा नेगेटिव लेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यही चीज आपको माइंड में सेट करना है। तो अगर 2+ चार्ज था, +2 चार्ज था, +2 से लेके जीरो में गया, तो इसने क्या किया, नेगेटिव को गेन किया ना, इसीलिए तो जीरो पे आ गया, तो ये रिड्यूस हुआ। और अगर ये जीरो से +2 पे जाता, ये ऑक्सीडाइज है, क्योंकि इसमें नेगेटिव कैरेक्टर खत्म हो गया, अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो ऑक्सीडाइज होता है। और जब उसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल? चलो प्रियतोष, ये वाला आंसर करो। Chlorine is reacting with ammonia to form nitrogen and 6HCl. नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन के ऑक्सीडेशन? एक्सप्लेन योरसेल्फ। दो ही चीज है भैया, या तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, यू एक्सप्लेन। अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन का क्या वैलेंसी रहेगा? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, don't see here and there, look at this formula NH3. In NH3 nitrogen is combining with how many atoms? हटाओ वो सब हटाओ, हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी।
कंबाइनिंग कैपेसिटी सिंपल, या इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना वो दिया, कितना लिया, कितना शेयर किया, उसके बेसिस पे। यहां पे नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 ना, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 3। ओके, सो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, प्लस की माइनस? +3। ऑल ऑफ यू आर ओके विद दैट? प्रिंस बताओ, या तो पॉजिटिव सर होगा या तो नेगेटिव। सर सर कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग होगा सर। हाँ देखिए, वैलेंसी या तो आपका पॉजिटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी, कोवैलेंसी, 3 टाइप आपने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे वैलेंसी में हम लोग चार्ज नहीं लगाते, ये आपका एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट क्लास 8 में निकाला गया था। चार्ज देना वैलेंसी में, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जिसमें कि हम लोग चार्ज देते हैं। यहां अमोनिया एक कोवालेंट कंपाउंड है या आयोनिक कंपाउंड है? कोवालेंट, बिकॉज नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर to become stable, what it want to do? Gain 3 electrons। लेकिन चलता नहीं, वो क्या करता है? शेयर करता है। तो नाइट्रोजन का इस तरीके से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और अमोनिया बनाएगा। सो देयर इज ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका वैलेंसी 3 है, प्लस माइनस कुछ नहीं बताएंगे। इधर नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, इधर N2 में 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में है। अब आप बताइए कि ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ? जब इधर आप चार्ज नहीं बता पा रहे हो तो आपको लगता है कि भैया या तो प्लस लो या तो माइनस लो, क्या करो? यहां तो सर कोवैलेंसी बोल दिए, अब क्या करें? हाँ, तब आप क्या करोगे? यहां पे ये वाले सिस्टम को पकड़ोगे, गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया में हाइड्रोजन है, N2 में तो हाइड्रोजन नहीं है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। बट दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस। ये आयोनिक कंपाउंड बनेगा अगर उस तरीके से होगा, लेकिन इट इज नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो क्या होता है, जैसे कि ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एकदम इंटरेस्टेड रहता है, बस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और स्टेबल बन जाएगा 18 ग्रुप वाले के जैसा। और ग्रुप 1 एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल वाला बन जाएगा। तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है बहुत कम है, इसीलिए बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। मतलब हल्का सा भी उसको कहीं से एनर्जी मिल जाए, फटाक से वो रिएक्ट कर लेगा, रूम टेम्परेचर में रिएक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा बीच में आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे कार्बन आ गया, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन ऐसे आ ही जाता है ना, 6 ही आ जाता है ना, उसमें कंफ्यूज क्या होना। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4, या तो 4 को वो ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन वो भारी काम है भैया, 4-4 इलेक्ट्रॉन लेना, 4-4 इलेक्ट्रॉन देना। तो क्या करेगा? शेयर करता है। तो यही हम लोग देखते हैं कि जो एंड्स में है, एक्सट्रीम में है, वो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा, लेकिन जब ग्रुप 1 ग्रुप 17 रिएक्ट करेगा
तो आयनिक ही बनाएगा। लेकिन जैसे कि HCl है, HCl इज कोवेलेंट और आयनिक। सर पोलर कोवैलेंट। पोलर कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो वहां पे हाइड्रोजन किस ग्रुप में है? ग्रुप 1 में है। लेकिन वो एक्सेप्शन है, आपको पता है हाइड्रोजन थोड़ा अलग बिहेवियर रहता है, इसलिए वो कोवेलेंट बनाएगा। लेकिन बाकी आप जो भी एलिमेंट ले लीजिए ग्रुप 1 में, उसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा? आयनिक बनाएगा। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला चीज थोड़ा सा हम लोग एक बार और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी, तो इसको आयुष 1 आप बताइए। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? शांत रहिए और सब लोग विचार कीजिए। क्लोरीन, कैन यू एक्सप्लेन? यू आर गोइंग फाइन, बोलो। क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? Cl2 HCl में कन्वर्ट हुआ ना, तो Cl जो है ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ? ऑक्सीडाइज क्यों? गेन ऑफ, या हाँ गेन हुआ। तो जब हाइड्रोजन गेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑपोजिट है। ये तो आसान वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो क्लोरीन HCl में कन्वर्ट हुआ, ये हो गया रिडक्शन। जब ये रिडक्शन हुआ यानी क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। जो चीज का अपने रिडक्शन होता है वो दूसरे को क्या कर देता है? अपने जब वो रिड्यूस हुआ, दूसरे को वो करेगा ऑक्सीडाइज, यानी इसको उसने कर दिया ऑक्सीडाइज। इसीलिए ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे कर रहा है नहीं, अपने अगर हो रहा है। अब जो 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कि ले रहा है स्टेबल बनने के लिए? ले रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो अपने वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिड्यूस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? हाँ प्रियतोष, तुम अनुलोम विलोम थोड़ा सा करो। तो इन द क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हमने एक्सप्लेन किया था, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और जब नेगेटिव 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 लेते हैं तो रिड्यूस हो जाता है। तो जो भी 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं स्टेबल होने के लिए, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। और क्योंकि वो अपने रिड्यूस हो रहे हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ग्रुप 17 आप एक जनरल टर्म बोल सकते हो, ग्रुप 17 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड ग्रुप 1 आर गुड reducing agents.
They are good reducing agents because group 1 will give the electron, one electron they will lose. When they lost the electron, they are getting oxidized. Themselves they are oxidized. They are reducing the other fellow. They are reducing agent. You can also say metals are good reducing agents because metals have lot of electrons. They are rich in electrons. They will give the electrons. Non-metals are good oxidizing agents because they themselves will gain the electron. They will get reduced. They will oxidize the other one. कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं. नाइट्रिक एसिड, concentrated sulfuric acid, these both are which type of agent? यात्रीगण कृपया ध्यान दें. सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. बोथ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन दे देगा दूसरे को, और दूसरे को जब हाइड्रोजन देगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ना हो जाएगा. ऐसा भी तो हो सकता है क्या? कंफ्यूज होना नहीं है. वो कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. हाँ, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मानते हैं. क्या वीक नानो ऑलमोस्ट HNO3, इसीलिए कुछ कुछ हमने देखा था इन दी सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन. when you react जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, जिंक सल्फेट बनेगा. ZnSO4 ट्वाइस होगा क्या? नॉर्मल, क्योंकि जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस. हाँ, H2 गैस रिलीज होगा. लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड रहा तो कहानी बदल जाती है. सर अगर डाइल्यूट रहेगा तब ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको बना देगा पानी. तो हाइड्रोजन गैस जो आप ये रिएक्शन कर ही रहे हैं कि वो बबलिंग वाला देखा जाए, हाइड्रोजन रिलीज को देखा जाए, पॉपिंग साउंड करा जाए. बस डाइल्यूट H2SO4 ले लिए, थोड़ा सा जिंक डाल दिए, सर बबल बन रहा है, और माचिस भी ला ले सर, पप 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 कर रहा है, तो दिखा दिया डाइल्यूट. हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड डाले तो नहीं होगा. सो HNO3 and H2SO4 concentrated very good oxidizing agent. वी हैव टू रिविजिट. कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, हम लोग को बार बार रिवाइजन करते रहना है. और जब हमने पिछली बार पढ़ा था तब भी आप समझे
लेकिन यही एक ही बात, करत करत अभ्यास के। चलिए नेक्स्ट, रेड्यूसिंग एजेंट में ऑल मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये क्या मेटल्स आर गुड, व्हाट इज दिस कंपाउंड? what peroxide? हाइड्रोजन peroxide। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इज इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बस है तो दो ही ऑप्शन, या तो इधर या उधर। देखिए कितना कितना याद रखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा ना। कुछ लॉजिक लगा के भी याद रखने से थोड़ा। अब H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अब ये पूछ लिया कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रेड्यूसिंग एजेंट है, क्या करोगे? पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, हाँ? आपका एग्जाम्पल है पेज नंबर 104। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, हाँ, क्यों क्यों? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सबको एग्जाम्पल्स इसमें दिया गया है रिड्यूसिंग एजेंट में, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हैं क्या रिड्यूसिंग एजेंट? HCl को लिख सकते हैं क्या कि ये थोड़ा सा हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीडाइजिंग, ये सब तो लिख ही रहे हैं सर, तो इसको थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देते हैं। विचार कीजिए। प्रिंस आपका क्या कहना है? सर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों है। अरे राम, सर एग्जांपल्स भी दे देंगे सर। सर पापा अलग से समझाए थे इसके लिए, सर याद है सर हमको। सर एग्जांपल दे। सर कॉपी में लिखा हुआ है सर। जब हम Cl2 को सर जब H2O2 से सर रिएक्ट करते हैं ना, तो HCl प्लस O2 बनता है सर। रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है सर यहाँ पे। Cl2 को क्लोरीन को H2O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। हाँ सर। तो सर रिएक्शन ऑफ HCl। क्लोरीन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ सर। हाँ, तो सर HCl प्लस O2 बनता है सर, रिड्यूसिंग ओके। नेचर। और सर जब हम लोग सर सर PbS को सर H2O2 से रिएक्ट करते हैं ना, तो PbSO4 प्लस H2O बनता है सर। सर पीबी, ऑक्सीडाइजिंग। सर पीबी प्लस PbS। सर PbS। लेड सल्फाइड। हाँ, हाँ सर, उसको सर H2O2 से रिएक्ट करते हैं ना, तो PbSO4 प्लस H2O बनता है सर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। प्लस SO4। सर सर PbSO4 प्लस H2O बनता है सर। H2O, ओके। हाँ, ओके। So according these two reactions in one place, it is acting as a, here what in this, according to this reaction, this chlorine is getting oxidized or reduced? सर Priya, तो Cl2 is converting to HCl because evolve, क्या
गेन ऑफ हाइड्रोजन है ना, बस सीधी बात उतने बोलो, ये क्या इवाल्व इवाल्व बोलो। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिडक्शन हुआ। हाँ, अब इस केस में क्या, वही, लेट अस सी दैट। लेड सल्फाइड हियर व्हाट इज हैपनिंग, वेदर इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और इट इज, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाला हिसाब लगा सकते हैं क्या? लेड लेड का तो कैसे पता लगेगा इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? चलिए, तब इसमें आप बताइए इसका वैलेंसी क्या है लेड का? 2+, यस। सल्फाइड ना S2-, तो इट विल बी Pb2+। सल्फेट, सल्फेट का क्या है? SO4 है, फिर SO4 2-। 2-, तो ये हो गया 2+। इसका क्या हुआ तब? ऑक्सीडेशन स्टेट बदला ना, बढ़ा ना घटा, ही नहीं गया क्या? फिर से नेट गड़बड़ाया है क्या? नहीं, नेट नहीं तो सर। है। ऑनलाइन गया, आयुष इज व्हाट, आर्यांश इज ज्यादा खेल लिया। Okay, so in this one, can you tell what is happening to this lead, whether it is getting oxidized or reduced? इस तरीके से हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें तो कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, लेकिन गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लेड सल्फाइड PbS में ये आया, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एक एक कंडीशन है जिसमें रिडक्शन हो रहा है, एक कंडीशन है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब दिस कंपाउंड इज एबल टू डू बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। Give example which can act as both oxidizing and reduction. But like this directly they will not ask. In your exam generally what they will give is, they will give one equation and they will ask, they won't ask reduction oxidation also directly, they will ask oxidizing agent reducing agent इसमें कौन है। Okay, next what is going to happen at cathode and anode? Yes, electrolyte, there will be a positive electrode and there will be a negative electrode. In the electrolyte they will be the ions, they will be the positive charged ions and negative charged ions. The positive charged ions will move towards the negative electrode. The positive charge ions are known as cations, move towards the good, anions will move towards the anode.
So in this electrolyte, whatever is there, they are the ions, and here this is the okay, electron. Now heat. So in this chapter, what is the reaction that is taking place at cathode, what is the reaction that is taking place anode, very important. जब नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, अगर इलेक्ट्रोलाइट यहां पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड means water is there in this or not? There is no water. So fused sodium chloride means NaCl will dissociate into Na plus and Cl minus. लेकिन जब हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बोलेंगे, दोनों आपको लिखना पड़ेगा. NaCl का डिसोसिएशन भी आप लिखेंगे और वाटर का डिसोसिएशन भी आप लिखेंगे. तो these two ions, Na plus ion, H plus ion, Cl minus, OH minus, ये दोनों टाइप का आयन्स आपके इलेक्ट्रोलाइट में उपलब्ध हैं. अब ये क्वेश्चन बनेगा कि हाँ डिपॉजिट कौन होगा. तो जो हम लोग का कौन सीरीज बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जस्ट लाइक रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेम. एक ही डिफरेंस आपका स्टार्टिंग में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये तीन के पास आप देखेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, that who is having the highest tendency to deposit at the electrode, नीचे, हाँ, एट कैथोड, कैथोड की तरफ, यानी जो सीरीज में नीचे रहेगा उसका टेंडेंसी ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, ये कैथोड की तरफ डिपॉजिट होने का. क्योंकि लिस्ट में देखिए सब क्या है, and those will move towards the, that is the cathode. So इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका कैटायंस में भी है, एनायंस में भी है. एनायंस का बहुत छोटा सीरीज आपको मिलता है, कैटायंस का थोड़ा लंबा सीरीज है. तो अब आपको कंपेयर ये करना होगा कि सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और H प्लस, ये दोनों में से किसका ज्यादा टेंडेंसी रहेगा कैथोड के पास डिपॉजिट होने का. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है. तो एट कैथोड when we are doing the electrolysis of aqueous sodium chloride, you will get hydrogen gas. H plus जो है एज हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास से रिलीज हो जाएगा. एनोड में क्या होगा, हाँ Cl माइनस और OH. तो हम लोग सीरीज को फिर चेक करेंगे, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH सबसे नीचे है. नहीं, वो लिखने नहीं बोलेगा, आपको याद रखना है. नहीं, याद करना होगा. और ये और आपका वो रिएक्टिविटी सीरीज बराबर है, बस पहले वाले में फर्क है. आप ब्रेक कीजिए, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत. तो एनोड
OH माइनस जो है उस किस फॉर्म में वो रिलीज होगा? OH जो है वो किस टाइप में डिपॉजिट होगा? यहां पे निकला हाइड्रोजन गैस, पॉप पॉप पॉप, और यहां से क्या निकला? ऑक्सीजन गैस। तो OH माइनस वाला जो है उसमें क्या होता है? OH माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू OH, OH plus OH gives rise to H2O plus O, and then this O plus O will give rise to O2. आप इतना याद रखो कि जब OH वाला ऑक्सीजन गिव्स, तब क्या होगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड रहा तो क्या होगा? ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं, HBr। ये बताइए हाइड्रोजन ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है? है। हम्म, है, इट इज ए इलेक्ट्रोलाइट। वेदर इन द प्योर HBr form it is electrolyte, or with water it will be electrolyte? बिना वाटर का इलेक्ट्रोलाइट वो हो सकता है? HBr is a covalent or ionic compound? HBr is a covalent or ionic compound? HCl? हाँ हाँ, पोलार कोवैलेंट है। पोलार कोवैलेंट जब होता है तो उसमें आयन कब रिलीज होता है? HBr का भी कहानी वही। तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं करेगा बेटा, बिकॉज इट इज ए मॉलिक्यूल। हाँ, HBr, HCl, HF, these are all polar covalent. Only in the presence of water they will ionize, and only because they will form ions then only they can act as an electrolyte. तो अब आपका जब प्रश्न है कि HBr अगर इलेक्ट्रोलाइट बनता है तो क्या होगा, ठीक है, तो HBr का डिसोसिएशन लिखेंगे और वाटर का डिसोसिएशन लिखेंगे। तो कैथोड पे H प्लस ही रहेगा जिसके कारण निकलेगा, और एनोड पे दोनों के बीच में चयन करना है। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल में नीचे OH माइनस है तो इसमें निकलेगा O2 गैस। OH का OH माइनस का O2 गैस। Okay, let us see another important example. ये सब कितना टाइम हुआ? बस। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर अंत वाला ही रहता है, लास्ट वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये दो को कंपेयर करना है, कॉपर सल्फेट
फ्यूज्ड और कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। इसमें बताइए कि कैथोड और एनोड में क्या क्या बनेगा, बनाइए फटाफट। एक है कॉपर सल्फेट, दूसरा है एक्वस कॉपर सल्फेट। हम्म। किसमें? क्या यहाँ पे? यहाँ पे ना? हाँ, इस तरफ में ओ एच माइनस आएगा, इधर एज यूजुअल Cu2 प्लस आएगा। हाँ, Cu2 plus will convert to Cu. OH minus will give rise to oxygen. What about this copper sulfate alone? सल्फेट का क्या होगा? कॉपर सल्फेट क्या केवल सॉल्यूशन फॉर्म में होगा? मतलब नहीं, वो सब एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन वो दूसरा चीज है। देखिए, कॉपर सल्फेट ये वाला नहीं है। कॉपर सल्फेट एक्वस में ही, हाँ, में ही रिएक्शन आएगा। कॉपर सल्फेट, ओनली कॉपर सल्फेट इज ए क्रिस्टल. You can fuse it, you can heat and fuse, but you already know that this is what type of compound, copper sulfate? Covalent or ionic? Ionic. Ionic. And ionic compounds have very high melting points and boiling points are very high. It's not feasible. People don't go for this. Go for aqueous, and under aqueous this one happen. इसमें देखिए, इधर इधर कहानी अभी खत्म नहीं हुआ. यू गाइस आर पैकिंग योर बैग, बट यू रिमेंबर नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस वन, इफ नॉट नाउ. Electrode is important. One is a platinum electrode and other is copper electrode. What will happen if there is a platinum electrode? What will happen? ये एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा. आप अगले क्लास में हम लोग करेंगे. अभी आप ऑक्सीजन खत्म हो गया आपका. वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. यही होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है चैप्टर के एंड में. ओके, थैंक यू. Platinum is unreactive electrode.